टीवी और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, the Prime Minister is here today in Mumbai, Yes, sir. and he's going to be inaugurating, or he has already inaugurated the 141st session of the meeting of the um, International Olympic Committee, which is fantastic. That shows the kind of commitment that the Prime Minister has for sports. India is doing very well in sports indeed, and at the moment it looks as though in the India-Pakistan match, it looks as though India is going to Cruise. kind of, walk through Roller coaster. the final, unless something really Drastic. untoward happens, and we lose about 5-7 wickets, in one over or something. Like that. No, what you said was right. If Pakistan from around 140 for 2 can become 199. 155 for 2. Yes, they were all out for 191. Yes. If you don't play carefully. So one never knows. At the moment, Rohit Sharma and Shreyas Iyer playing very, very well indeed. But the fact is, as far as Mr. Modi is concerned, yesterday the first batch of Indians trapped in the war in Gaza, in Israel, have been brought back. I think by day after tomorrow, the second batch will come in. And I don't think Mr. Modi is going to leave anybody trapped in Israel in the country. That He has never done it, sir. 2014 से लेके आज तक any major conflict has happened around the world, Yes. and our people have been stranded. That's right. He has worked his way out. As Sushma Swaraj has praised him that even he stopped the Saudi-Yemen war. He asked the king of Saudi personally, and he obliged saying that I can't stop the war for 4 days, but बीच में gap में रोकता रहूँगा bombings. आप वहाँ से 2 घंटे में खाली कर देना for 4 days. And we did. We brought in all our people in 2 planes. One was a C-17 Globemaster, the other was a C-130 Hercules, and that was fantastic. Not one single Indian was left behind. Exactly the same thing is going to happen as far as Israel is concerned, which is absolutely fantastic. And tomorrow, by the way, is the greatest time of the year as far as I am concerned. मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त जो टाइम होता है साल का, वो कल से शुरू होगा, वो है नवरात्रि. You and the Prime Minister himself, he believes a lot. The Prime Minister is a great man. The fast starts tomorrow, and of course, as you know, we all fast in our own way. I fast, of course, with 1 apple a day, and the rest of the day is water, of course, and that's fantastic. I mean, I feel great. I feel really and truly fantastic all throughout the time. Pradeep ji, you don't even feel hungry at the time when you're fasting. I've during seen Navratri. Years and years together you've been doing it. It is absolutely lovely. The loveliest time of the year where I am concerned. दुर्गा माँ की जो पूजा होती है और नवरात्रि में जो डांडिया होता है, which is fantastic by the way. And here I must say that जहाँ तक डांडिया का प्रश्न है प्रदीप जी, हम लोगों ने नई मुंबई में, इन मुंबई में सबसे पहले हमने डांडिया की लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत की, और उसके बाद now of course it's become really and truly big. Everybody joined in later. उस वक्त लोग पूछा करते थे, भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं? We started with Falguni Pathak, and it was really and truly lovely. At the moment with us, we have another really and truly famous and amazing Dandiya singer, a man who is considered a star in his own right, Mr. Nilesh Thakkar, right now with us. Nilesh Thakkar ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार Nilesh Thakkar ji, कैसे हैं? बस फाइन. आप कैसे हो सर? बहुत जबरदस्त. माता रानी की कृपा है. माता रानी की कृपा है और हमेशा की कृपा रहनी चाहिए. नीलेश ठक्कर साहब, इस बार जरा आप बताएं कहाँ पर गा रहे हैं, किस जगह परफॉर्म कर रहे हैं इस बार डांडिया में, जरा बताएं. मैं बोरीवली में नवरंग नवरात्रि, बोरीवली में ओपेल कन्वेंशन सेंटर है जी, जो एक एसी साउंड प्रूफ डोम है और बहुत ही अच्छी जगह है, जो क्लोज नवरात्रि है. बोरीवली की एकमात्र क्लोज नवरात्रि एसी डोम नवरात्रि है, वहाँ पे परफॉर्म. सो दोनों में फर्क क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है बड़े ओपन ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं. ओपन ग्राउंड में और क्लोज नवरात्रि में क्या फर्क होता है, ये जरा बताएं. एक्चुअली ये ग्राउंड ही है, लेकिन ये डोम है पूरा.
बहुत बड़ा डोम है जिसमें अराउंड 4000 पीपल की कैपेसिटी है। और फ़र्क ये है कि पूरा एसी है और पूरा क्लोज है, साउंड प्रूफ है। तो एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एसी है तो लोग एग्जॉस्ट नहीं होते, लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि थोड़ा लंबे देर तक ये डांडिया चलता है, रात को लेट तक। तो ये दोनों बहुत बड़े फ़ायदे हैं because there's no noise pollution, which is या fantastic. देयर इज़ नो नॉइज़ पोल्यूशन या। विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो नीलेश जी, ये अपने बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कब से आप ये कर रहे हैं, कब से आप ये गाना गा रहे हैं, कब से आप डांडिया के वक्त नवरात्र में गाना गा रहे हैं, जरा उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। दिस इज़ माय 34th ईयर ऑफ नवरात्रि। क्या बात है साहब, वंडरफुल। यू लुक अबाउट 23, तो 34th ईयर कैसे हो गया? मतलब ये क्या मतलब हुआ यार? चलिए, लेकिन फिर भी बताइए प्लीज, गो अहेड। दिस इज़ माय 34th ईयर ऑफ नवरात्रि। और मैंने 17 साल डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के साथ एज अ को सिंगर काम किया है। जी। और लास्ट अराउंड 15 ईयर्स से ये मैं अपने खुद के बैंड के साथ नवरात्रि बोरियल में परफॉर्म कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, 1998-99 में सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट जो फाल्गुनी पाठक जी का हुआ था, वो हम लोगों ने करवाया था व्हेन वी वर रनिंग इन मुंबई। ओके, या आई नो जी आई नो जी। तो अभी फाल्गुनी जी हैं कहाँ पर? फाल्गुनी भी बोरियल में ही परफॉर्म कर रही है। क्या बात है, Okay, वंडरफुल वंडरफुल। So both are competing with each other. ये हाँ, No, तो फाल्गुनी के बारे में आपकी क्या राय है? किसी का नहीं हो सकता है। तो फाल्गुनी के बारे में आपकी क्या राय है, वो जरा बताएं। हम सब जितने भी नवरात्रि सिंगर है सबकी मेंटोर है वो। क्या बात है साहब, वंडरफुल वंडरफुल। मेरी तो खास करके है क्योंकि मैंने 17 साल उनके साथ काम करके बहुत सारा कुछ सीखा है उनसे। जी। और मैक्सिमम सिंगर्स मेरे ख्याल से उनको फॉलो करते हैं। जी। एंड इट्स अ प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद फाल्गुनी। Oh, she's brilliant. She's So absolutely in brilliant. Borivali you're not competing with her. You are, compete नहीं कर रहे हो आप एक दूसरे से। कंपटीशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बाजू बाजू में है तो। लेकिन लोग अभी ऐसा करते कि 5 दिन हमारे उधर आते, 5 दिन उसके साथ आते। जो उसके डायट फैन है वो उसके उधर ही जाते हैं, जो मेरे उधर डायटली खेलने को पसंद करते हैं, मेरे डायट फैन है वो मेरे उधर ही आते हैं। ऐसा है। जबरदस्त। लेकिन नीलेश ठक्कर जी, क्या ये बताएं कि गानों में कोई फर्क आया है? मतलब इतने साल से आप डांडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, नवरात्रि में परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या गानों में, गानों की क्वालिटी में, भाषा में कोई फर्क आया है क्या? मतलब थोड़ा म्यूजिक वगैरह में तो फर्क आया, वो तो देखा है हमने, लेकिन क्या गानों में फर्क आया? स्टाइल ऑफ म्यूजिक में थोड़ा चेंज हुआ है। यंगस्टर्स जो है वो थोड़ा मॉडर्न साउंड प्रिफर करते हैं। हमारे उधर की नवरात्रि की एक स्पेशलिटी है कि वी डोंट गो ऑन एनी बॉलीवुड नंबर्स और समथिंग। वी स्पेशली स्टक ऑन टू द ट्रेडिशनल नंबर्स, जो ट्रेडिशनल गरबे है, जो राधा कृष्ण के रास है, माता जी के गरबा है, उस पर हम लोग वी ट्राई टू मैक्सिमम, हम नवरात्रि वाले ये प्रिफर करते हैं कि उस पर स्टक रहे ऐसा। जी। और आप जो शुरू करते हैं, नेचुरली शुरू तो आप माता जी की आरती के साथ ही शुरू करते होंगे या जी, लेकिन आगे जाकर के जो आपके सबसे पॉपुलर नंबर्स हैं, सबसे पॉपुलर जो गाने हैं, उसके बाद क्या होता है? जो पहले 5 या 6 गाने आप गाते हैं, उसमें कौन से गाने गाते हैं आप जरा बताएं। माता जी के गरबे से ही शुरू करते हैं, जो ट्रेडिशनल गरबे रहते हैं माता जी के, जी, उससे ही शुरू करते हैं। कोई नमूना सुनाएंगे सर हमको प्लीज, हमको और हमारे दर्शकों को। जैसे इस वक्त हमारे साथ है नीलेश ठक्कर साहब। आज की तारीख में उनकी नवरात्रि हो रही है बोरीवली में, ऑन दैट कवर्ड डोम। इट्स कंप्लीटली एसी, इट्स कंप्लीटली एयर कंडीशन, एंड देयर इज अ स्पेस फॉर अबाउट 4000 or 5000 couples. So it's up to you. You know where to go. जी, नीलेश जी बताएं। जैसे कि माता जी का गरबा रहता है, कोई भी एक समझो माता जी के गरबे से हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे एक बहुत पुराना गरबा है, सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे, रूपला गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। ऐसे एक ट्रेडिशनल गरबे से कोई भी 4-5 रहते हैं, उनसे हम लोग शुरू करते हैं। जबरदस्त। अब तो ये ये- तो ये एक हर साल- मिनट प्रदीप जी, ये तो मुखड़ा हो गया, अब इसका अंतरा भी सुना दो यार। ये तो मुखड़ा सुना दिया, उसके बाद अंतरा भी तो सुनाओ। सखियो संगाथे केवा घूमे छे, फरर फूदड़ी फरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे।
ये अंतराल उसका। जय माता दी, क्या बात है जी। प्रदीप जी आपको बोलिए, ठाकर साहब बोलिए। ये 4-5 गीत गाते हो जो भगवान को प्रेरित है, तो वो हर साल वो सेम फॉलो अप करते नहीं रूटीन? नहीं नहीं नहीं, वो बदलते रहते हम लोग, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल है जो बहुत पुराने उनको हम लोग लेते ही रहते हैं, ऐसा आता है। बिकॉज हर व्यक्ति जो आपके ऑडियंस है वो चाहता है यही से आप शुरू करो, यही से शुरू करो, बिकॉज बहुत चाहने वाले हैं आपके, वही गाना कुछ सुनने गाने के रहते लिए। हैं जो हम लोग को रोज लेने पड़ते हैं, जैसे कि मेरा एक गाना है जो बहुत फेमस है, तो वो पीपल डिमांड करते हैं कि वो हम लोग रोज ही गाए, जैसे वो थोड़ा फास्ट बीट में आता है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। ये गाना है तो ऑलमोस्ट अरे पब्लिक थोड़ा बोलती थोड़ा है और कि सुनाइए ना, दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग बाय द वे। ये मेरा जब भी नवरात्रि में ही बने नहीं तो वैसे राधा भी श्याम फेवरेट सॉन्ग है। बनूंगा। जरा थोड़ा और सुनाइए ना प्लीज। जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। ये गाना है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वी ये मुझे याद है, मतलब आपने और फाल्गुनी जी ने ये गाना भी एक बार नहीं न जाने कितनी मर्तबा गाया है। और एक बार वो घाटकोपर में इतनी जबरदस्त नवरात्रि थी, आई थिंक द क्राउड ओवर देयर वाज आई थिंक अबाउट 70-75,000। मुझे याद है वी हैड कवर्ड इट लाइव, हम लोगों ने लाइव कैरी किया था सहारा में। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, रियली वंडरफुल। तो इसके अलावा अब चलो ये तो राधा जी की बात हो गई, तो जहां तक माता के खुद के जो नवरात्रि के जो गाने हैं उसमें से आपके खुद का फेवरेट कौन सा है, वो जरा बताएं। माता जी के जो गरबे के गाने, उसमें हम लोग एक पैटर्न बोलते हैं जिसको डाकला पैटर्न बोलते हैं। जी तो उसमें एक गाना है वो मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और वो गाने से पब्लिक भी एकदम चार्ज अप हो जाती है, वो गाना हम लोग गाते हैं तो। फिर माता जी के दूसरे जो है कुछ जरा सुनाएंगे सर, जैसे जरा सुनाइए, बोल के कुछ नहीं होगा, जरा खेल बताइए। खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ, ओ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ, ओ जय जय अम्बे माँ जय जय अम्बे माँ, खेल खेल रे भवानी माँ जय जय अम्बे माँ। ये गाना है जी जो दुरुस्त बात, हर जगह पे, हर जगह पे, हाँ, हर नवरात्रि में यही of चलता course, है of जी। course। ठाकर साहब ये फिल्मों में जब भी डांडिया होता है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का वो गाना, वो काल के पंजे से माथा छुड़ाओ, जय मां अष्ट भवानी, बहुत बहुत फेमस है फिल्म लाइन में। तो ये भी कभी गाते हो क्या आप, अमिताभ बच्चन नहीं, रेखा नहीं, वाले? वो तो नहीं, लेकिन वो जो गाना जिस गाने गुजराती गाने से इंस्पायर हुआ है वो गाना हम लोग जरूर गाते हैं। वो गुजराती गाने के 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। जी प्लीज प्लीज। हे रंगलो जाम्यो कालिंदरीने घाट छो गाड़ा तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुवे तारी, हे वाट रंगलो। ये इसी पे से वो गाना इस पे से इंस्पायर हुआ है। Fantastic. जबरदस्त। अच्छा ये बताएं सर, आप अभी वो एयर कंडीशन डोम में गा रहे हैं, जरा दोबारा उसका एड्रेस बताएंगे सर, ताकि हमारे ये है दर्शकों को बोरीवली मालूम हो। लिंक रोड में, नियर फिस्को रेस्टोरेंट, ओपेल कन्वेंशन सेंटर, नवरंग नवरात्रि। ओपेल कन्वेंशन सेंटर, नवरंग नवरात्रि, याद रख लीजिएगा। यू वांट गो देयर एंड आई मीन सो देयर must be tickets, there must be passes, something or the other. Yeah. It's available on the net. Is that available on the Yeah, net? it's on Paytm Insider. Paytm Insider. All right, you can get it on Paytm Insider. Navrang Navratri, it starts tomorrow. Please be there. Tomorrow is the first day It of starts from Navratri. 7:30 onwards. हम लोग पहले माता जी की आरती करेंगे और फिर गरबा शुरू करेंगे। Fantastic, absolutely And fantastic. do you end by 10 or 12 बजे तक चलते रहते हैं? Gee, that's what I was about to ask. So Okay. you go on till about 12 o'clock? लेट नाइट तक चलता है थोड़ा, लेकिन टाइम कभी फिक्स नहीं रहता है। जैसे अभी लो एंड ऑर्डर से जो भी जाता है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपका क्या है, यू हैव एन एडवांटेज, एयर कंडीशन है, क्लोज्ड है, ऑब्वियसली देयर इज नो साउंड पोल्यूशन, बाहर कुछ साउंड नहीं जा रही है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एन ऑब्जेक्शन। यही आपसे पूछना था। होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वी हैव टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। या अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस बार वादा तो किया था कि इस बार जो डांडिया है
वो लंबा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो वो वक्त देखा है कि डांडिया सुबह तक खेला करते थे यार, मैंने खुद ने गाया सुबह सूर्य सुबह होने 7 तक खेला करते थे। मैंने खुद ने सुबह 7 बजे तक गाया है। क्या बात है, अरे कंटिन्यू 7 बजे तक। व्हेन वाज दैट, व्हेन वाज दैट, जरा बताएं कब That कब was की the बात? time. It was like Must be 95, 96. 30 years or something. Must be 97 or 96, 97, around that time. Yeah. Yeah, because the laws came in, I still remember, around 1999. 99 के बाद जो है वो हो गया 10 बजे का टाइम हो गया वगैरह वगैरह। That was terrible यार। अभी 10 बजे, अरे 10 बजे तो वार्म अप होते हैं लोग यार, 10 बजे तो जाकर के गरबा का टाइम ही सुबह शाम रात को 10 बजे से चालू होता है ऐसा। जी दुरुस्त बात है। तो अब आपका जो डांडिया है, आपकी जो नवरात्रि है जहां पर आप गाते हैं, तो लोग ज्यादातर भक्ति गीत प्रेफर करते हैं कि जो लोकल गुजराती पारंपरिक गीत वो प्रेफर करते हैं? प्लीज जो प्रॉपरली जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक गरबा है, जी। फिर राधा कृष्ण के जो रास के गाने हैं, फिर शंकर भगवान के कुछ गाने हैं जो हम लोग गाते अरे हैं। शाबाश, ये We शंकर sing, भगवान का कौन सा गाना है यार? ये तो Sorry. सुनाओ जरा प्लीज, आई वांट टू लिसन, जरा बताएं प्लीज। या हो जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। ये गाना हम लोग गाते हैं। क्या बात है साहब, वंडरफुल। ये कभी फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ दिस। कभी क्राउड को एकदम पैशनेट करने के लिए कोई बीच में आप लोग गाता होगा एक जबरदस्त गाना, वो पूरे क्राउड हिल जाता होगा अपलिफ्ट करने के लिए। ए अमो काका बापा ना पोयरा रे कौंडलियो खिलाड़ू, अमो काका बापा ना पोयरा रे कौंडलियो खिलाड़ू, कौंडलियो खिलाड़ू, कौंडलियो खिलाड़ू। ये गाना हम लोग बीच में गाते हैं। क्या बात है साहब, वंडरफुल। लेकिन एक चीज है नीलेश शक्कर साहब, जब आप अलग कब हुए फाल्गुनी जी से? फाल्गुनी जी के साथ आप बैकअप सिंगर थे, उनके साथ में गाते थे, बैकअप सिंगर ही नहीं थे, उनके साथ में भी गाते थे, और जब वो अंदर चली जाती थी, थक जाती थी, आप क्राउड को संभालते थे अपने गानों से। तो जब आपने अपना शुरू कर दिया तो फाल्गुनी जी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया कि ये क्या कर रहा है, मुझको छोड़ के कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी, लेकिन स्टिल वी आर ऑन गुड टर्म्स। ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे टर्म्स पे है और कभी कभी बातें भी होती है। हर एक आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो जी। मैंने एक स्टेप लिया आगे बढ़ने का, बस और कुछ नहीं। फैंटास्टिक। तो बगल बगल में तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, थोड़ा दिन हमारे पास आओ, थोड़ा फाल्गुनी जी के पास जाओ, उस ढंग से एडवर्टाइज करते हैं कि पूरे हर दिन यहीं पर आ जाए? सर फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, लोग अपने आप ही 5-5 दिन डिवाइड हो जाते हैं। और जो मैंने पहले ही कहा कि जो उनके डाइट फैन है वो 10 दिन उनके उधर ही जाते हैं, और जो मेरे डाइट फैन है वो 10 दिन मेरे उधर ही आते हैं। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन आपने And मैंने जैसे बोला कि नवरंग नवरात्रि बोरीवली की एक बहुत ही जो एक क्लोज नवरात्रि है, बहुत ही वन एंड ओनली वन क्लोज और प्रीमियम नवरात्रि है, तो वो हिसाब से लोग यहाँ पे आना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्राउड भी वो लेवल का रहता है, क्योंकि एसी डोम है, अच्छे घर के लोग, वेरी हाई ग्रेडेड पीपल यहाँ पे आते हैं, तो क्राउड भी वैसा ही रहता है यहाँ पे। लेकिन ये बताएं, सॉरी आपको वापस लेके जा रहा हूँ, कि आपने जो शुरुआत करी वो कब करी? कितने छोटे थे आप, कितने बड़े थे आप, क्या उम्र आपकी क्या थी? आपने 34 साल स्टार्टेड इन 1990। 1990, वाओ। Where did you perform first, sir? सबसे पहली परफॉर्मेंस आपकी कहाँ की, याद है आपको? First I performed in Malad in a building, त्रिमूर्ति टावर, मलाड लिबर्टी गार्डन में बिल्डिंग है, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। बिल्डिंग नवरात्रि थी, उसमें परफॉर्म किया था। सेकंड ईयर मैंने परफॉर्म किया था कांदीवली में, मजीठिया नगर में जी। तभी उस टाइम में वो मजीठिया नगर की नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि गिनी जाती थी जी। सेकंड ईयर आई परफॉर्म देयर, एंड थर्ड ईयर से फिर आई जॉइन फाल्गुनी पांडे। जबरदस्त। तो फाल्गुनी के साथ मुलाकात कब हुई? जो पहली मुलाकात आपकी हुई फाल्गुनी के साथ, वो जरा बताएं। फाल्गुनी के साथ पहली मुलाकात मेरी, फाल्गुनी तभी बीटर्स करके एक ग्रुप में गाती थी, वो बीटर्स और फाल्गुनी वेर टुगेदर। याद है, उनके शो में मैं ऑडिशन के लिए गया था, और वहाँ पे ही मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। तो क्या कहा फाल्गुनी ने आपको, और आपने फाल्गुनी को क्या कहा? बस उन्होंने कहा कि आप चालू राउंड में उन्होंने बोला मुझे आप 1-2 गाने गाइए, मैंने गाए और फिर उनको पसंद आया, तो दे ऑल एग्रीड, एंड फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। जबरदस्त। यूजुअली सुपरस्टार्स में क्या होता है, जैसे साउथ में 2 सुपरस्टार है, कमल हसन, रजनीकांत, तो पहले दोनों साथ में करते थे पिक्चर,
फिर बहुत दोनों में अंडरस्टैंडिंग होते थे कि भाई कमल हसन आप ऐसे पिक्चर कर लो, कमल हसन रजनीकांत को, तो दोनों तो अभी भी तालमेल होता रहते हैं हर साल आपका कि आप इधर मैं उधर, ऐसे गाना मैं गाऊंगा, ऐसे गाना आप गाओगे, ऐसे ऑडियंस को आप ले लो, ऐसे ऑडियंस को हम लेंगे। नहीं उतना तो इतना नहीं होता है कम्युनिकेशन, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं नवरात्रि के पहले, नवरात्रि के बाद भी हम लोग बात करते हैं कि अरे हाँ मैंने तेरा ये देखा था टीवी पे, मैं भी बोलता हाँ मैंने भी ये देखा था आपका टीवी पे, वैसा बात होता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो फिल्म लाइन में आप कभी गाने का इच्छुक थे या फिर टोटली आप डिवोटेड थे स्पिरिचुअल और जो स्पिरिचुअल चीज में, इसमें डेडिकेटेड था पहले से। टोटल स्पिरिचुअलिटी में? या नवरात्रि एंड ऑल। ओके ओके ओके, बिकॉज फिर आप अलग ही आपका स्पिरिचुअल मींस अलग फिल्म से हटकर बहुत बड़ा फील्ड है स्पिरिचुअल, यानी बहुत बड़ा फील्ड है। बिग बिग फील्ड। सो वेयर एल्स हैव यू परफॉर्म सर? नीलेश ठक्कर साहब जरा बताएं प्लीज। मैंने और, all over और, world और perform किया है, कहाँ पे परफॉर्म किया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, जरा बताएं। हिंदुस्तान में भी सब, हिंदुस्तान के बाहर सब जगह पे, यानी यूएसए, यूके, दुबई, मस्कत, बहरीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग। अफ्रीका में कहाँ पर सर? किधर? कीनिया में, युगांडा नाइजीरिया में? युगांडा कहाँ? युगांडा में भी किया है, फिर अपना केन्या में भी किया है, जी वंडरफुल, नायरोबी में भी किया है, नायरोबी में भी किया है। नायरोबी में भी। There's a huge Yes or Gujarati no? population where Africa is concerned, South So, Africa, so, East so Africa. what do they prefer to listen to? Nilesh Thakkar साहब, for Traditional example in Gujarati. Africa, ट्रेडिशनल गुजराती दे प्रीफर। ट्रेडिशनल गुजराती या और बिल्कुल संगीत और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गाते हैं, पारंपरिक तरीके से। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, ढोल के साथ बस। नहीं, अपने जो ड्रम्स वम्स और ढोल उसके साथ ही। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट? जैसे नैरोबी में आपने परफॉर्म किया, नैरोबी में लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट गाना कौन सा था डांडिया का? वो आपको मालूम ही होगा वैसे, वो जरा बताएं सर प्लीज। गुजराती के ट्रेडिशनल जितने भी माता जी के या राधा कृष्ण के, जैसे कि अभी हम लोग जो एंड करते हैं वो राधा कृष्ण की धुन से करते हैं, जैसे वो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, तो ये सब भी चीजें वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। और अमेरिका में, यूएसए में क्या टेस्ट है सर? सेम उनको भी ये सब ट्रेडिशनल जो भी गाने हैं उनको सब पसंद आते हैं बहुत। तो USA में आपको लगता है कि वहां के जो हिंदुइज्म बहुत कट्टरता से यहाँ से ज्यादा वहां पर प्रीच कर लेते हैं, और यहाँ के भजन जितने हैं वो बहुत दिल से वो लोग लेते हैं, हमने भी सुना है आप। या उनका एक है कि वो लोग पूरे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आते हैं खेलने के लिए जी। और प्योर ट्रेडिशनल जो गाने हैं उसको प्रिफर करते हैं वो लोग, तो वो लोग ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और नंगे पैर आते हैं ज्यादातर, या चप्पल उप्पल के साथ, जूतों के साथ नहीं आते। या तो आपको भी नंगे पैर, आपको भी नंगे पैर परफॉर्म करना पड़ता है कि आप? नहीं ऐसा स्टेज पे तो ऐसा कुछ होता नहीं। क्या बात है सर, क्या ये इस क्षेत्र में आने के लिए कोई इंस्पिरेशन था कि अपने आप ही आ गए? बिकॉज क्या है, कुछ लोग मोस्टली जो गायक रहते हैं वो सोचते हैं कि पहले फिल्म लाइन देखो, फिल्म में ट्राई कर लो। क्या आपको कोई प्रेरणा था, इंस्पिरेशन था कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअल इस फील्ड में आना है? बिकॉज बहुत लोग को कोई रोल मॉडल होता है जिसको देख के वो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट, तो आई विल, और अपने आप को उस फील्ड में उसी व्यक्ति के हिसाब से इम्बाइब करते हैं। आपको कोई ऐसा रोल मॉडल था इस सिंगिंग में? सिंगिंग में एक्चुअली मेरा तो सिंगिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। अच्छा मुझे तो एक्टर बनना था, सिंगर बन गया। अच्छा। अभी लेकिन भी कॉलेज है? के एनुअल डे में गाया था, वहाँ पे जो ग्रुप आया था ऑर्केस्ट्रा वाले, एक्सीडेंटली कॉलेज में एक फ्रेंड ने मुझे चढ़ा दिया एनुअल डे में गाने के लिए, तो जो ग्रुप आया था उन्होंने बोला आप अच्छा गाते हो, आपको ट्राई करना चाहिए प्रोफेशनली। तो मैंने सोचा नहीं यार मेरा ये सब काम नहीं है गाना वाना, ये तो ऐसे ही आ गया मैं। लेकिन फिर भी वो अपना कार्ड दे के गए थे मेरे को कि आपको ऐसा लगे तो आप हमें कांटेक्ट करना। फिर मैंने भी सोचा चलो कांटेक्ट करता हूँ, अगर होगा कुछ तो देखेंगे। फिर कांटेक्ट किया, फिर उनके ग्रुप में ज्वाइन हुआ और एक्सीडेंटली फिर भगवान की दया से सब आगे बढ़ता गया। तो अभी भी एक्टिंग एम्बिशन है सर क्या नीलेश ठक्कर साहब? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो अभी चला गया। अभी नहीं है सर, चलते अभी चलते गाना ही पैशन हो गया। और एक्टिंग में कौन रोल मॉडल था आपका? यानी आप एक्टिंग में आना चाहते थे, जैसे हमारे राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है, तो सेम अमिताभ बच्चन अमिताभ को देख के आप All time favorite। थोड़ा स्टाइल आपका लग रहा है, वो बाल बाल जिस प्रकार से है। नहीं। नहीं, लेकिन ये बताएं चलते चलते सर, चलते चलते माता जी की आरती अगर थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो प्लीज। जय आद्या शक्ति
मा जय आद्या शक्ती अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या पडवे पंडित मा ओम जय मा जगदम्बे बोल श्री अम्बे मात की जय 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 भवानी, जय माता दी। नीलेश ठक्कर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, Thank नवरात्रि you, की sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank जय you, sir. भवानी, जय माता दी। थैंक यू सर जय और, भवानी और आप गाते, आप फास्ट रखते हैं सर? आप नवरात्रि का फास्ट रखते हैं कि नहीं रखते? फास्ट तो नहीं करता मैं जी। लेकिन भक्ति करता हूँ बस लेकिन नाम स्मरण फास्ट करके गाना जरा मुश्किल होता है, सीधी सादी बात है। बट थैंक यू वेरी मच, ए ग्रेट प्लेजर Thank you. टॉकिंग टू यू, एंड वी Thank विल you, ट्राई, sir. वी शैल ट्राई एंड कम टू सी योर नवरात्रि। प्लीज डू सर सर आइएगा तो मुझे बताइए नहीं सर, किसी को बिना बताए आएंगे सर, दूर अच्छा, दूर thank देखना चाहेंगे कि आप कैसा गाते हैं, क्योंकि श्योर we श्योर will सर do that. But thank you very Sure. much again, और जय माता दी, जय जय माता माता दी। Thank you so दी, much. जय जय माता दी, हर हर महादेव, Thank जय you. माता दी। जय माता Thank you very much, thank you. What a beautiful time is here, Pradeep ji. This is really a lovely time, यस बिल्कुल सर। absolutely fantastic. एनर्जी, शक्ति, जी, The अगले whole- अगले 9 दिन के लिए अम्बे माँ का यहाँ पे वास होगा धरती के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दानव हैं, जितने भी राक्षस हैं, उन सब का नाश होगा। भारत में और पूरे विश्व में शांति होगी। एक बार फिर सुख की, खुशी की पुनः स्थापना होगी। हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं। द होल यूनिवर्स इज बबलिंग विद एनर्जी, यस, एंड पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। Right, and at the moment with us